Prime Minister Narendra Modi turns 75. He has spent 24 years holding constitutional positions, 13 as Chief Minister of Gujarat and over 11 years now as the Prime Minister of India. It is indeed a rare feat. In his speeches, he often speaks of turning resolve into success. And if one were to look at his life, it is a story of steely resolve, emotional depth, hard decisions, relentless effort, and pure unapologetic politics. His political journey is like a cinematic script where time has written multiple roles for him, and he has embodied all these roles. राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। And today, he stands among the most powerful, visionary and popular leaders of the world. He is the first Prime Minister born in independent India, the first non-Congress Prime Minister to complete 2 consecutive terms, and now the second Indian leader to begin a third. The nation has seen tears in his eyes several times. समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति और परिवार का छोटे से छोटा बच्चा समान रूप से ये भाव व्यक्त करता है, तो मुझे लगता है कि पहला मुझसे कोई गलती ना हो जाए, दूसरा मेरे मन में भाव रहता है, हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, परमात्मा ने स्वयं ने मुझे किसी काम के लिए भेजा। And we have seen him roar when the nation was challenged. घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। We have seen him connect with people amid chants of his name echoing like a mantra. एक बेटी बहुत बढ़िया पेंटिंग बना करके लाई थी। बेटा वो पेंटिंग मुझे मिल जाएगी, आपने उसमें पता लिखा है अपना? ये कैसे कर दिया? अच्छा लिख करके दे दो, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। बहुत बढ़िया चित्र बनाया आपने। On the global stage, we have seen him shake the status quo. मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। Under his leadership, the Ram Mandir was built in Ayodhya, the tricolor hoisted at Lal Chowk in Srinagar. Rural India transformed through Jan Dhan and Ujjwal Yojana, and foundation was laid for Atmanirbhar Bharat. देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। At 75, in the second year of his third term, he's still relentless. How does he stay so driven? परिश्रम में जो तपा है, उसने ही तो इतिहास रचा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, उसने ही समय को मोड़ा है, और समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। Time is moving forward,
and Prime Minister Modi is moving with it. He's not chasing destinations. He's walking the journey one milestone at a time. It all began with a childhood dream. His struggles and effort powered that dream and eventually brought him to 7 Lok Kalyan Marg, the Prime Minister's office. But this journey had its share of ups and downs. 75 years ago, in the land that carries Mahadev's heritage and Tansen's melodious legacy, the third son of Damodar Das Modi was born, and this man went on to give this city a new identity. बड़ी बड़ी शख्सियतों के पैतृक आवास को स्मारक बनाने के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब एक ऐसे प्रधानमंत्री की कहानी भी सुनिए जिसकी शुरुआत एक 50 गज के घर से होती है। ये वही जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। आज इसे कुछ ही महीनों पहले तोड़ना पड़ा है क्योंकि आसपास की इमारतों पर इसके जर्जर हालत का प्रभाव पड़ रहा था। बहरहाल आप सोचिए कि कितनी कठिनाई से, कितने कठिन परिस्थितियों से, कितने सीमित दायरे से निकलकर एक व्यक्ति की उड़ान आसमान को पार कर। One of 6 siblings, Modi's childhood was spent in poverty. हमें गरीबी क्या होती है वो देखने के लिए जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने बचपन गरीबी में बिताया है। शाम को जब घर में चूल्हा न जले, बच्चे रात रात रोते रहें, तब पता चलता है गरीबी क्या होती है। His father ran a tea stall and Narendra Modi helped. यहाँ से करीबन 200 मीटर इनकी स्कूल है। यहाँ ये रेलवे स्टेशन में इनके पिताजी की कैंटीन चलती थी। तब वो स्कूल से जब छूटते थे, रिसेस होती थी, तब वहाँ से सीधे अपने पिताजी को चाय के धंधे में मदद करने के लिए यहाँ आते थे। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अब किसी के गले नहीं उतरेगा ये लोगों के घर में, इसलिए खाने का कोई बच्चा जो अच्छा मैं कभी बता करके नहीं जाता था, पढ़ा है तो खाता था वरना चला आता था, ऐसे जिया हूँ। Everything about his life was ordinary except his will. સાચા બોલો છે, એનામાં કોઈ કૂડ કપટ નથી. એના માને બાપ નથી ગણતો અને સમાજની પબ્લિક બેનદેવ સરખું જ ગણે છે, કોઈ भेदभाव नहीं। शक्ति है, वो कोई स्वार्थी नहीं है, वो सब सेवा करते हैं। स्कूल के अंदर हमने अच्छी तरह से सभी में पार्ट लिया था। रमत गमत में भी पार्ट लेता था, नाटक चेटक में भी पार्ट लेता था, और कहीं न कहीं कोई न कोई लेखन स्पर्धा हो तो उसमें भी पार्ट लेते थे। फिर कॉलेज में तो वो हमने नाटक एक साथ किया, पगरखानो पाड़ियो। पगरखा એટલે जूते, गुजराती में पगरखा बोलते हैं। एक दिन बापू बाहर बैठे थे तो उनकी मोजड़ी एक कुत्ता ले गया, तो उसके ऊपर आकर पूरा नाटक था, और वो एमएन कॉलेज में हमने बहुत अच्छी तरह से पेश किया था। तो उनको बार बार तालियां बजती थी, तो वारंवार वंस मोर होता था। अच्छा, तो उसमें हम 8-10 मित्र थे और नरेंद्र भाई बापू बने थे। मैं इस समय अहमदाबाद के वडनगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जो बचपन में नरेंद्र मोदी के जीवन यापन का जरिया था। आज इस स्टेशन की, इस शहर की पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ी है। यहीं पर उनके पिता चाय की दुकान लगाया करते थे। ठीक उसी जगह पर अब कुछ मरम्मत करके उस स्थान को रख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उनके पिता चाय बनाते थे। नरेंद्र मोदी बचपन में चाय को लेकर ट्रेनों में सवार यात्रियों को बेचा करते थे।
और इसके ज़रिए जीवन यापन उनका होता था। यहाँ से उनकी कहानी की शुरुआत होती है। ये कहानी बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये कहानी है संघर्ष की, तो ये कहानी है उम्मीद की। ये कहानी बताती है कि आप कितने भी नीचे से शुरुआत क्यों न करें, आपका लक्ष्य कितना बड़ा है, आप कितनी ऊंचे तक सपना देख सकते हैं, आप उसे पूरा करने के लिए कितना परिश्रम कर सकते हैं। ये कहानी उन्हीं उसूलों की है। And right behind the railway station, where his father ran a tea stall, stood Modi's school. Hearing the noise of the bell, a young Modi would rush to class. अरे जा नरेंद्र, ये ले अपना बस्ता और स्कूल जा, घंटी बज गई है। और सुन, अच्छे से पढ़ना। ठीक है बाबूजी। ये नरेंद्र मोदी का स्कूल है, जहाँ पर कभी वो शिक्षा प्राप्त करते थे। लोग उनके अभिनय को भी याद करते हैं, एक एनसीसी कैडेट के तौर पर उनका समय याद करते हैं। और सबसे बढ़कर बात ये कि यहाँ पढ़ने वाले गरीब घरों के बच्चे भी ये सोचते हैं कि वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण है। प्रधानमंत्री को जिन टीचरों ने पढ़ाया उनमें से अधिकांश अब बहुत वृद्ध हैं, हालांकि अभी भी जो आयोजन होते हैं उसमें वो स्कूल आते हैं। लेकिन आप सब जो आप यहाँ पढ़ाते हैं, क्या प्रधानमंत्री को देखकर आप सब महसूस करते हैं? और जो टीचर सुनाते होंगे वो कहानियाँ तो सुनाते ही होंगे। पहले तो मोदी जी हमारे स्कूल के छात्र रहे हैं, उस बात का हमें गर्व है। हमारे बच्चों के लिए ये सबसे बड़ा मैसेज है। हम बच्चों को कहते हैं कि एक सामान्य परिवार से आया हुआ बच्चा आज देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा है। आप में भी ऐसी कई शक्तियां हैं कि आप भी कुछ कर पाते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा मैसेज माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब का जीवन है। उनके भूतपूर्व टीचर कहते थे कि नरेंद्र भाई बाल्यकाल से ही शिस्त वाले थे, एनसीसी के अच्छे कैडेट्स रह चुके हैं। उन्होंने नाटक किया था जिसमें जोगीदास कुमार का रोल किया था। जब जब उनके टीचर आते हैं तो वो ये बात अवश्य करते ही हैं। अभिनय में भी वो मशहूर थे और नेतृत्व के गुण तो बाल्यकाल से ही उनमें थे ही। और ये तीसरी जो वो तस्वीर है ना, 2017 में सर यहाँ पे वडनगर आए थे, तो यहाँ स्कूल में आकर उन्होंने अपनी स्कूल की मिट्टी को सर पर चढ़ाया और आंखों में आंसू आ गए। उनको बाल्यकाल का जीवन उनके सामने आ गया। Not just in school, stories of young Modi are etched across every corner of Vadnagar. When Modi was in school, the RSS was expanding in Gujarat, and he joined the Sangh quite early. His mentor, Lakshman Rao Inamdar, also known as Vakil Sahab, initiated him as a Bal Swayam Sevak. The RSS shaped his spirit, but Modi was restless. He was torn between Hindutva activism and asceticism. In fact, his whereabouts were unknown for 2 years. Some say in those years, a restless Modi searched for answers and even ventured into the Himalayas. After this spiritual quest, he returned to Ahmedabad and put up a small tea stall near Geeta Mandir bus station. Swayam Sevaks would visit the tea stall, and the Swayam Sevak in him awakened again. It was during this time that the RSS was emerging as a political force, not just in Gujarat, but across India. His social work during droughts helped change its image. There was growing anger against emergency. Modi's responsibilities in the Sangh grew. His management skills increased both his importance and the RSS reach. He was sent to Nagpur for special training at the RSS headquarters. When he returned to Gujarat as a pracharak,
he was given the charge of AVVP. थे कैसे पढ़ाई में थे, क्या कहते थे, क्या सोचते थे उस समय कि जीवन में करेंगे? कभी बोलते थे कि प्रधानमंत्री भी बन सकता हूँ? नहीं, ऐसा तो कोई इमेज नहीं थी, लेकिन हम सब आरएसएस के कार्यकर्ता थे। उसमें आरएसएस में होता है कि हर एक इंसान को आगे जाना चाहिए, कुछ न कुछ देश के लिए करना चाहिए। तो हम इसीलिए शाम को 1 घंटा शाखा में मैदान में जाते थे और बराबर सभी देश प्रदेश की बातें करते थे, नई नई रमते थे बराबर, और चर्चा भी करते थे। Modi's organizational skill was his strength. So much so, the RSS in Gujarat would not move without Modi. Modi spent years at the Hegrewar Bhavan in Maninagar, but he knew that leading Sangh workers was different from leading the masses. He realized true leadership needed a political platform. In 1987, he was loaned to the BJP. His job was to expand the party's base in Gujarat. From 11 seats in 1985 to 121 in 1995, the foundation had been laid. Around this time, the Babri Masjid Ram Mandir debate was speaking. In 1990, the BJP launched the Ram Rath Yatra, led by L.K. Advani. Modi was a Sarthi. A poetic twist. The man who drove Advani's Rath would one day see the temple rise under his own rule. Modi's management of logistics during the Yatra impressed the BJP brass. He was assigned Murli Manohar Joshi's Ekta Yatra next. But his political role was still behind the scenes. Hindutva was rising. The BJP was in opposition. In 1995, the BJP won 121 seats in Gujarat. Keshubhai Patel became Chief Minister. But Shankar Singh Waghela forced him out within 221 days. Atal Bihari Vajpayee had to come to Gujarat to do damage control. When Gujarat's politics imploded, Modi was moved to Delhi. He lived in a single room at 9 Ashoka Road, learning, networking, growing. Modi's exit from Gujarat did not help his rivals or his friends. The BJP even lost municipal posts. The BJP's top brass turned to Modi. Keshubhai was removed and Modi made the chief minister. मुझे याद है जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मिला था तो अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका टेलीफोन आया कि भाई कहाँ हो, तो मैंने उनको कहा मैं स्मशान में हूँ। तो हंस पड़े, हमरे यार तुम स्मशान में हो, मैं तेरे से क्या बात करूं। मैंने कहा नहीं अटल जी आपने फोन किया, कोई काम होगा। उनका अच्छा कितने बजे लौटोगे और स्मशान में क्यों हो। मैंने कहा ये माधवराव जी सिंधिया का जो एक्सीडेंट हो गया है उसमें उनके साथ एक पत्रकार कैमरामैन है गोपाल, उसका भी स्वर्गवास हुआ है, तो मैं उस गोपाल के फ्यूनरल में आया हूं, क्योंकि माधवराव सिंधिया के फ्यूनरल में तो सब जाएंगे, गोपाल में कौन जाएगा। शाम में उस गोपाल के फ्यूनरल में था, एक कोई और राजनेता तो ना नहीं, मैं था, वो 2-4 उसके बेचारे पत्रकार मित्र थे। तो मैं रात को अटल जी के यहाँ गया और फिर उसके बाद मेरे जिम्मे काम आ गया, अचानक आ गया, मुझे पता तक नहीं था। मैं गुजरात से दूर था, मैं गुजरात की गतिविधियों से भी परिचित नहीं था। ऐसी स्थिति में जब मैं आया तो मैंने दिल्ली से फोन किया मेरी पार्टी को गुजरात में। मैंने कहा भाई मुझे बुला तो रहे हो लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ, मेरे पास तो घर नहीं है, रहूंगा कहाँ। तो उनका आप चिंता मत कीजिए, हम सर्किट हाउस में कमरा बुक करा देते। तो मैंने उनसे कहा देखिए भाई कमरा बुक कराइए, मैं एमएलए कुछ नहीं हूं, पूरा पैसा अगर सरकार लेती है तो कमरा बुक करना, और पूरा चार्ज दे करके मैंने कमरा बुक करवाया और वही जिंदगी की शुरुआत एक नए मोड़ पर। When he returned, the party was broken and elections were just 4 months away. Then the unimaginable happened.
Gujarat burned in the 2002 riots. पहली बात है कि सरकार का एजेंडा है लॉ एंड ऑर्डर, और मैं सरकार का दायित्व संभालता हूँ। सरकार संविधान की सीमाओं को लेकर के चलती है। सरकार किसका क्या एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए काम सरकार का नहीं है। सरकार का काम है कानून और व्यवस्था को बहाल करना। और तभी सरकार पहली बार गुजरात में कम्युनल वायलेंस हैं, जो 72 घंटे में इतने बड़े वायलेंस को रोकने में हम सफल हुए। Modi responded with his development work. Gujarat's GDP growth crossed 10% under him. दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन लगाई। पाइपलाइन की साइज इतनी बड़ी है कि हमारे मित्र भाई अखिलेश मारुति कार में बैठ करके परिवार के साथ उस पाइपलाइन के अंदर गाड़ी चला सकते हैं, और जिसमें से हम नर्मदा का पानी ले जाते हैं 9000 गांवों में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाते हैं। Gujarat was changing, and so was Modi. He wore suits, looked like a CEO. Critics were silenced with development. In 2003, he coined the slogan Vibrant Gujarat. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सुनते और गुनते दोनों हैं। तो मोदी जब आरएसएस के प्रचारक थे तो उन्हें पूरे देश को घूमने का मौका मिला, सर्टेन जगहों पर काम करने का मौका मिला। वो एक ऐसे परिवार से भी आते हैं जहां रोज कुआं खोद कर पानी पीना पड़ता है, और ऐसे लोगों में अक्सर जिजीविषा बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो एक तो उनका वो पारिवारिक संस्कार कि ज़मीन से जुड़े रहना है और ज़मीन से जुड़े रहकर ही ज़मीन से शक्ति हासिल करनी है। दूसरा, आरएसएस के दौरान जो उनकी ट्रेनिंग हुई, और तीसरा जब वो राजनीति में आए तो उन्होंने आम आदमी के दुख दर्द पर जिस तरीके के ध्यान दिए और उन्होंने जो प्रशासन में प्रयोग किए, उसने गुजरात में उनको एक अजर अमर अविनाशी टाइप का राजनेता बना दिया। समाज की समझ, समाज के अंतर विभेदों की समझ, सबको साथ लेकर चलने की शक्ति और प्रशासन पर ज़बरदस्त पकड़, ये मोदी को मोदी बना दिया। Despite criticism, Modi kept moving forward. मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। He knew 2002 would cast a cloud. He launched the Sadbhavna mission to bridge divides. मैं पहले भी कभी आहत नहीं था, आज भी आहत नहीं हूँ, लेकिन आहत के सिवाय भी तो एक स्टेज होता है जो इन सब के बावजूद भी अपनापन कैसे पनपे। किसी ने कुछ कर दिया, उसके बावजूद भी अगर मैं अनशन पर बैठा हूँ तो मुझे भी तो ईश्वर से कुछ अपने लिए मांगना चाहिए। तो मैंने खुद के लिए मांगा है कि मुझे शक्ति दे, जो मुझे सबसे प्यार करने की ताकत दे, सबको अपना बनाने की ताकत दे, और ये तो निरंतर प्रक्रिया है जो चलनी चाहिए। He observed 36 fasts at locations across Gujarat. 24 घंटे के भीतर ये जितने लोग 10 साल से गुजरात की बुराई कर रहे हैं, गुजरात को बदनाम कर रहे हैं, गुजरात पर गंदे गलीज झूठे आरोप लगा रहे हैं, फिर एक बार गुजरात को बदनाम करने से पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। हमने तो गुजरात को ऐसा पेंट किया था, लेकिन गुजरात तो कुछ और है। हमने तो मुसलमान के लिए कह दिया था, लेकिन यहां तो लोग गले मिल रहे हैं। हमने ईसाइयों के लिए कहा रहा था, लेकिन यहां तो ईसाई भी साथ चल रहे हैं। ये गुजरात की एकता, गुजरात की शांति, गुजरात का भाईचारा, ये सद्भावना मिशन के माध्यम से ये शक्ति के जो दर्शन हुए हैं, इससे ये लोग मुट्ठी भर लोग चौंक गए हैं। He ruled Gujarat for 13 years. And when the UPA was crumbling under corruption, a new chorus rose. Modi for Delhi. आपकी अगर इच्छा है
तो मैं जरूर 27 तारीख को एक दिन के लिए दिल्ली हो आऊंगा। He became the BJP's Prime Minister candidate in 2013. Many, even in his own party, doubted him. आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे एक सामान्य परिवार से आए हुए, छोटे से कस्बे से आए हुए एक कार्यकर्ता को बहुत बड़े कार्य के लिए दायित्व दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को ये विश्वास दिलाता हूं कि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, उसके लिए परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। But he was a master strategist. He turned 2014 into Modi versus UPA and won. आज 32 रुपये में मुश्किल से चाय भी 2 टाइम नहीं मिल सकती है, लेकिन दिल्ली की सरकार की गरीबी के हिसाब ऐसे है कि वो घोषणा करते हैं, चिक चिक करके दुनिया को समझा रहे हैं, अरे 5 रुपये में तो जैसा चाहिए वैसा खाना मिल जाता है। मुझे बहुत पीड़ा है कि दिल्ली में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको हिंदुस्तान के गरीब को खाने में कितना खर्च होता है उसका पता तक नहीं है। कांग्रेस के शहजादे बोले, मैं कुछ दिन पहले पूर्व सैनिकों को मिला था और 1 रैंक 1 पेंशन की सैनिकों ने मांग की, तो मैंने कहा था मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। अच्छा होता अगर आप जवाब देते कि देश के जवानों का सर काट के ले गए हैं, उस सर को वापस कैसे लाओगे, ये तो बता देते। He promised अच्छे दिन and people believed. चुनाव ऐसा है जो 125 करोड़ देशवासियों में एक नई आशा लेकर के आया है। भाइयों बहनों, आपको लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं? आपको लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं? आपको लगता है बुरे दिन जाने वाले हैं? On 26th May 2014, Narendra Modi became the 14th Prime Minister of India. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के Critics called it a fluke. Modi worked harder. मैं जानता हूं पहली बार मैं जीत करके आया, देश की जनता ने मुझे जिता करके बिठाया, तो जो लोग नहीं चाहते थे उनको समझ नहीं आया ये कैसे हो गया। दोबारा न जीत पाऊं, देश की जनता समर्थन न करे, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन देश की जनता ने पहले से ज्यादा आशीर्वाद दे दिए। ये सदमा ये अभी भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये पहले तो आ गया, ये दोबारा कैसे आ गया। Swachh Bharat, Jan Dhan, Ujjwala. He kept his sankalp to serve. Called himself not Prime Minister, but Pradhan Sevak. देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के
कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। Critics targeted him over demonetization, Rafale, surgical strikes, and farmers' protest. But Modi stayed on course. His 2019 comeback was bigger. He ended triple talaq, removed Article 370, oversaw Ram Mandir construction, and dreamt big about India's economy. हमारी सरकार का इंटेंट और कमिटमेंट एकदम साफ है। हमारे डायरेक्शन में कोई डायवर्जन नहीं है। चाहे नेशन फर्स्ट ये हमारा कमिटमेंट हो, चाहे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प हो, चाहे सैचुरेशन अप्रोच को हम अचीव करने का इरादा लेके चले हो, चाहे जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की बात हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत का हमारा दृढ़ संकल्प हो, चाहे विकसित भारत के विराट संकल्प के लिए हमारी लंबी दौड़ हो, हम इसके लिए पूरे फोकस के साथ काम कर रहे हैं। During COVID-19, he united India with Atmanirbhar Bharat. 21वीं सदी का भारत एक नए मिजाज का भारत है। न हमें आपदाएं रोक सकती हैं और न ही बड़ी बड़ी चुनौतियां। एक ऐसा भारत जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जो अपने सामर्थ्य को पहचानता है। ये बात हमने इस कोरोना काल में भी देखी है, जब दुनिया के अनेक देश थम गए थे। हमारे देश ने नई नीतियां भी बनाई, नए निर्णय भी लिए। In 2024, Modi returned for a historic third term. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी On August 15, for the 12th time, he unfurled the tricolour at Red Fort. His message was clear. The journey isn't over. He won't stop. He isn't tired. And he won't tire. न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। 2047 में विकसित भारत बना करके रहेंगे। From Vadnagar's dusty lanes to the world's biggest stage. From tea seller to transformational leader. This isn't just a story of a man. It's a story of belief, of purpose, of resolve, and of a journey still in motion.